निगरानी करे तो दुख काहे को होए। দুঃখের সময় আমরা ঠাকুরকে স্মরণে করি, হে ঠাকুরই হে গোবিন্দ। কিন্তু যে সময় আমাদের সুখে আসে তখনই কেন ভুলে যাই? যখন আমাদের জীবনের সুখে আসে তখন আমরা ঠাকুরকে ভুলে যাই। ঠাকুর বলছেন, হে জি, এই নরকে বসে তুই আমার স্মরণে করছিস, আমার নামে করছিস। আজ যদি আমি তোকে জন্ম দিই তাহলে তুই আমার নাম করা ভুলে যাবে। হে ঠাকুর ভগবান, প্রত্যেকটি জীব আমরা দুই হাতে জোরে করে ঠাকুরকে ডেকে বলেছিলাম, হে গোবিন্দ, হে দয়াময়, আমি যেদিন মাতৃভূমিষ্ঠ হব সেদিন থেকে তোমার নামে ভিন্ন আমি আর কিছু উচ্চারণ করব। আমি যেদিন মাতৃভূমিষ্ঠ হব সেদিন থেকে তোমার নাম, আমি যেদিন মাতৃভূমিষ্ঠ হব সেদিন থেকে আমি তোমার কথা শ্রবণ করব, তোমার কথাই বলব। বাবা, আমরা প্রত্যেকটি জীব ঠাকুরকে হাতের পরে হাতে রেখে কথা প্রতিজ্ঞা করেছি। ওই আমরা বেশি কর্ম করছি, কেউ পাচ্ছি যে কথা আমরা ঠাকুরকে বলে এসেছি সব কথাই ভুলে গিয়েছি। আর এই জড়জগতের বুকে এই সংসারের ভিতরে পড়ে আমরা সেই গোবিন্দকে ভুলে যাচ্ছি, সেই আপনি জ্যোতিকে ভুলে যাচ্ছি। মা, কিসের জন্য এসেছি আর কি করে যাচ্ছি? আমাদের লক্ষ্য সেই ভগবানকে ডাকারে, সেই ভগবানের চরণে পাবার, কিন্তু সংসারে হয়ে পড়ে সেই গোবিন্দকে ভুলে যাচ্ছি, তার নাম ভুলে যাচ্ছি। আজকে আপনাদের সেই সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এইবারে যিনি ভাগবতের কথার আয়োজন করেছে, আর এনাদের পরে তো রাধারানীর কৃপা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীর পরেও কৃপা হয়েছে। তা আসে আজকের প্রথম দিন, আর আজকের বাবা ভাগবত মহিমা, ভাগবতের কথা কে প্রচারে করলেন, ভাগবতের কথা কে লিখেছে, আর এই ভাগবতের কথা শ্রবণে কে করলেন? কোনদিনই কে কথা বলেছি, হে ঠাকুরে, তোমার যদি কোনো দুঃখ থাকে, কোনো কষ্ট থাকে, তুমি তোমার দুঃখ আমাকে দাও, আমার দুঃখ নিতে হবে না। তোমার যদি কোনো দুঃখ থাকে সেই দুঃখ আমাকে দাও। জানেন বাবা, তখন ঠাকুরে তিনি বলবেন, আমারে ভক্ত, আমারে ভক্ত আমারে দুঃখের নেওয়ারে কথা বলছে, তার দুঃখের কথা আমাকে বলছে না। মা, ব্রজধামে গোপীগণে কি করতেন? সকলের সময় ঠাকুরকে বলতেন, হে ঠাকুরে, তোমারে যদি কোনো দুঃখ থাকে, তোমারে দুঃখ আমায় দাও। তোমারে যদি কোনো কষ্ট থাকে, সেই কষ্ট আমায় দাও। তাই ঠাকুরে তিনি জানেনি কি বলবেন, আমার ভক্ত, আমার ভক্ত আজকের আমার দুঃখ নেওয়ার কথা বলছে, তার দুঃখ আমাকে প্রকাশ করছে। আমার ঠাকুর তো অন্তর্যামী, আমার ঠাকুরের তো সবই কিছুই জানে, যে ভক্তর জীবনে দুঃখ আসে, কষ্ট আসবে, পরে সময় কি হবে এ কথা আমাদের বলতে হবে না। তিনি তো সবই কিছুই জানেন, তার কাছে আমরা কেন বলতে যাই আমার দুঃখ নিয়ে নাও, আমার কষ্ট নিয়ে নাও? একটি ভক্ত কি বলে, হে গোবিন্দ, হে দয়াময়, যদি আমার
কষ্ট দাও, আমি যেন সেই কষ্টের ভিতরে পড়ি, আমি যেন তোমায় ডাকতে পারি, আমি যেন তোমায় ডাকতে পারি। জানেন সে সময় আমার ঠাকুরের তিনি মৃদুলে হাসি দিয়ে সেই ভক্তকে নিজের বক্ষ মাঝে জড়িয়ে ধরবে যে আমার সন্তান, আমার ভক্ত। বাবা একটি মায়ের 5টি সন্তানের বাবা, আর এই 5টি সন্তানকে মা প্রত্যেকে দিনই কি করে, হাতে খেলনারের জিনিস দিয়ে সন্তানকে ব্যস্ত করে দেয়, আর মা তিনি গৃহকর্ম করতে থাকে। মা ওই 5টি সন্তানের ভিতরে একটি সন্তানের খেলনারের ভিতরে মনে বসে না বাবা, একটি সন্তানের মনে বসে। তাই জানেন ওই সন্তানের সম্মুখে খেলার জিনিস পড়ে আছে, ওই সন্তানকে স্পর্শ করবে না, আর উচ্চরে শুনে মা মা বলে কাঁদতে থাকবে। মা তিনি গৃহকর্ম ছেড়ে ওই সন্তানকে নিজের বক্ষে জড়িয়ে ধরবে। আমার সন্তানই কাঁদছে, আমার সন্তানের চোখে জল মা কিন্তু সইতে পারে না। আমরা সকলেই সেই ভগবানের সন্তান, আর সেই ভগবানের তিনি আমাদের হাতে খেলনারে জিনিস দিয়েছেন। মা এই সংসারের জন্য তো অনেক কেঁদেছে, জানেন আমরা প্রত্যেকটি মানবের সেই ঠাকুরের সন্তানে ঠাকুরের তিনি আমাদের হাতে খেলনারে জিনিস দিয়ে রেখেছে, আর বলছেন মানব দেখি আমি তুই আমাকে ডাকিস কিনা তোর খেলনারে জিনিস ছেড়ে। মা আমাদের হাতে খেলনারে জিনিস স্ত্রী পুত্র পুত্রী টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি, এই আমাদের হাতের খেলনারে জিনিস। জানেন যত সময় না আমরা মোহকে ত্যাগে না করব, তত সময় আমার গোবিন্দ তিনি কৃপা করবে। মোহকে সর্বপ্রথমে ত্যাগ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি অর্জুনকে ডেকে বললেন, হে অর্জুন, যদি কোনো মানবে আমাকে পেতে চায় তাহলে মোহকে ত্যাগ করতে হবে। বাবা যদি বলেনি কি সংসারে ত্যাগ করলে ঠাকুরে কি পাবো, না না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, সংসারে থাকা পাপ নয়, সংসারীকে মনে বসানো পাপ। সংসারীকে যে মানবে আপনি চিন্তনে করবে, যে সকলের সময়ে সন্তানের বিষয় নিয়ে চিন্তনে করবে। চিন্তা আর চিন্তনে কিন্তু আলাদা। চিন্তনে যদি করতে হয় তা গোবিন্দর চিন্তনে করুন, আর চিন্তা মানে সংসারের চিন্তা, তাই না? তা আজকের থেকে আমরা সকলেই এই সপ্তমী দিন সেই ভগবানের সন্তানের রূপে রাজা পরীক্ষিত যেমন মনে প্রাণে দিয়েছিলেন, আমাদের সকলকে মনে প্রাণে দিতে হবে। একের হাতে হাত বেঁধে ভক্তি সহকারে এই কথাকে শ্রবণ করতে হবে। আপনারাও কিছু কিছু নিয়ে নেন, লজ্জা ঘৃণা ভয় থাকিতে নয়, দাঁড়িয়ে যান, দেখে নৃত্য করতে চান। এই মা কিন্তু সব নিয়ে গেল, পুণ্য কিন্তু আপনারা পাবেন না। দেখেন লজ্জা ঘৃণা ছেড়ে দিয়েছে। এখনই বিয়ে বাড়ি হতো না, আর বিয়েতে নাচতো।
হরি আমার ঘরে এসো, আও আও হরি আমার গঙ্গা। আজকে কি করছেন? শিব বাকি বিহারীকে নিজের ঘরে ডাকছে, তাই একটু মনে খুলে ডাকেন না, এত কঞ্জুসি কিসের? হ্যাঁ, কঞ্জুসি কিসের করছেন? তোর হাত উঠা গাই। আমি বলবো আপনি আসুন। ওমা কি বলেছিলাম, বাড়ি থেকে কিছু আনার কথা বলেছিলাম। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, सेवा भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
लेकर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव भीतर हैं और दो शिष्य बाहर खड़े हैं। एक शिष्य भीतर गए, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम कर गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, क्या मैं भजन करते करते भोजन कर सकता हूँ? मैया, गुरुदेव ने क्या कहा कि पुत्र, तुम भजन करते करते भोजन नहीं कर सकते हो, ये अन्याय है, ये भूल है, ये नहीं कर सकते हो। वो शिष्य बाहर आए। जो शिष्य बाहर खड़े थे उसने पूछा कि अरे भाई, तुझे अनुमति मिला है? उसने कहा नहीं, गुरुदेव ने मुझे आदेश नहीं दिया। तो बाहर जो शिष्य खड़े थे वो शिष्य भीतर गए और गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जी, क्या मैं भोजन करते करते मैं भजन कर सकता हूँ? भैया, गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए गुरुदेव ने कहा, पुत्र, तुम भोजन करते समय भजन कीर्तन कर सकते हो। वो शिष्य बड़ा आनंदित हो रहा है और आनंद से बाहर आकर दूसरे शिष्य से पूछा कि अरे भाई, एक ही प्रश्न, तूने भी गुरुदेव से पूछा और मैंने भी पूछा, तुझे अनुमति नहीं मिला लेकिन मुझे मिला, तूने प्रश्न कैसा किया था? तो माताएं, जो शिष्य पहला गए थे भीतर, वह शिष्य कहने लगे कि भाई, मैंने गुरुदेव को धन्यवाद प्रणाम करके गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, क्या मैं भजन करते करते भोजन कर सकता हूँ? तो गुरुदेव ने कहा नहीं, ये अन्याय है, ये नहीं करना चाहिए। तब उस शिष्य ने कहा कि सुन भाई, तूने भजन के साथ भोजन को जोड़ा है और मैंने भोजन के साथ भजन को जोड़ा है, इसलिए गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि तू भोजन करते समय भजन कर सकता है। हम कहते हैं ना, हमारे पास समय नहीं, ठाकुर जी की नाम उच्चारण करने के लिए, नाम जाप करने के लिए समय की प्रयोजन है, समय चाहिए। ऐसा नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु, उन्होंने भी कहा है कि इस कलयुग में केवल नाम आधार, कर्माण्य वाच करस्ते, अर्थात कर्म करते रहो और मुख में हरि 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 बोल हरि नाम करते रहो। हरि रे नाम केवलम करो रस्ते को बदीरत्व। हे ठाकुर भक्तगण, ये नहीं कि संसार को त्याग कर अब जंगल में जाकर ठाकुर जी की भजन करें, नहीं, ठाकुर जी ने ये नहीं कहा। संसार में रहकर ही ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। वो कैसे? भोजन करते समय श्री राधा, श्री राधा। अगर भोजन के साथ भजन को जोड़ते हो तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। खाना बनाते समय अगर श्री जी का नाम लिया तो वो खाना प्रसाद बन जाता है। जिस घर में श्री जी का नाम है वो घर मंदिर बन जाता है। कर्म करते समय अगर आप हरि नाम करते हैं तो वो कर्म सत्कर्म बन जाता है। कर कर देखिए, यही तो है भगवान को पाने का रास्ता। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इस युग में तप करना पड़ता था, ध्यान करना पड़ता था,
लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते थे जो ऋषिगण हैं। माताएं, इस कलयुग में सरल पद कि अगर मुख में हरिनाम है तो ठाकुर जी उस भक्त को अपने हृदय से लगा कर रखते हैं कि नहीं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा अपना है, क्योंकि ये मेरा नाम ले रहा है। घर की जो भूमिकाएं वह करती है और एक स्त्री से ही घर स्वर्ग होता है और एक स्त्री के कारण ही घर नरक बन जाता है। एक स्त्री से ही धन की प्राप्ति होते हैं और एक स्त्री के कारण ही धन व्यर्थ चले जाते हैं, नष्ट हो जाता है। शादी के बाद अगर संतानें नहीं होते तो ये समाज उनको बाज कहकर पुकारते हैं, उनका मुख दर्शन नहीं करना चाहते हैं कि सुबह सुबह अगर इसका मुख दर्शन मैंने किया तो मेरा दिन ही खराब हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। आज आत्मादेव जी दुखी है कि मेरे जीवन में एक संतान नहीं है। इस अनुपम नगर वासी सब मुझे देखकर तिरस्कार करते हैं। हे ठाकुर जी, अब जीवित रहकर क्या लाभ मिलेगा? अब मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। जिस शरीर को देख कर कोई दूसरे अगर किसी ने मेरा मुख दर्शन किया तो ये कहते हैं कि देखो देखो बांझ आ गए, इसका मुख दर्शन करेंगे तो हमारा शुभ काम नहीं होगा। ये जो एक पीड़ा है ना, जिनके जीवन में संतानें नहीं है वही जान सकते हैं कि संतानें ना होने का क्या दुख है। और जिसके जीवन में संतानें हैं वही जान सकते हैं कि संतान होने का क्या आनंद है। हे ठाकुर भक्तगण, एक माता पिता एक संतान के लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, अगर कुछ दुख देना है तो मुझे दीजिए, मेरे संतान को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं। एक माँ पता है क्या करती है? ठाकुर जी को प्रणाम कर ठाकुर जी से कहती है कि हे प्रभु, जो दुख देना है आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरे संतान को नहीं, मेरे बेटे को नहीं, मेरी बेटी को नहीं। मैं दुख सहन कर लूंगी लेकिन मेरे बच्चे सहन नहीं कर सकते हैं। इस जीवन में कोई सगा है तो माता पिता ही है। बहुत से माता पिता है कि एक अन्न के लिए भूखे प्यासे कहां कहां भटक रहे हैं, घर पे रो रहे हैं। संतान माता पिता को खाना नहीं देते। एक सच्ची बात कहूं, जो मनुष्य ठाकुर जी को प्रत्येक दिन भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं और अपने माता पिता को घर में भूखे प्यासे छोड़कर ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो ठाकुर जी भी कहते हैं कि जो मनुष्य माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनको आदर सम्मान नहीं करते हैं, वो मुझे 56 प्रकार के भोग से भोग लगा दे, मैं उस भोग के तरफ देखता भी नहीं हूँ। पाना तो छोड़ो, मैं देखता भी नहीं हूँ। जो माता पिता के अनादर करते हैं, तो जिनके घर में माता पिता है, आज से एक प्रतिज्ञा कीजिए कि माता पिता को कभी दुख होने नहीं देंगे। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जितने दिन माता पिता जीवित हैं उतने दिन उनकी सेवा करें। आज आत्मदेव जी सोच रही है
मन में कोई संतान नहीं है, इस धन से क्या लाभ है, इस शरीर से क्या लाभ है। मैं अब मृत्यु को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। हे ठाकुर भक्तगण, रात के समय आत्मदेव किसी को न कुछ ना कहकर चल पड़े वन की ओर। वन के ओर चल पड़े और ठाकुर जी से कहने लगे, हे ठाकुर जी, मैं इस शरीर को त्यागने के लिए जा रहा हूँ। शास्त्र में श्री सुखदेव मुनि ने वर्णन किया है कि आत्मदेव पुत्र गृह में बिना कुछ खाए पिए लकड़ी की भांति हो गए। कुछ 2-3 दिन बीतने के बाद आत्मदेव एक तालाब से जल पान करके भूमि पर मूर्छित होकर गिर गए और उसी क्षण एक सन्यासी महात्मा जी हरे नाम गुनगुनाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र को उच्चारण करते हुए तालाब के पास से आ रहे थे। तभी संत जी ने देखा कि एक व्यक्ति भूमि पर मूर्छित होकर पड़े। संत जी तालाब से जल पान करके उसी व्यक्ति के हृदय तक, वो हरि राम हृदय तक छू गए। आत्मदेव थोड़ा सा मूर्छित थे और चेतन अवस्था में आकर आत्मदेव ने देखा कि उनके सन्मुख एक सन्यासी जी खड़े हैं। आत्मदेव जी ने धन्यवाद प्रणाम करते हुए रो रहे हैं। तब सन्यासी जी ने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ऐसा क्यों रो रहे हो, तुम्हारा दुख का कारण मुझे बताओ। आत्मदेव जी कहने लगे, हे सन्यासी जी, मैं अनुपम नगर में रहता हूँ, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं एक भिक्षाजिनी ब्राह्मण हूँ। हे सन्यासी जी, मैं अपना दुख आपको क्या बताऊं, मैं इतना पापी हूँ, इतना नीच हूँ कि मैं अपना दुख कैसे बताऊं। एक सच बात है, जो सन्यासी होते हैं ना, जो ठाकुर भक्त, वो खुद के दुख से पहले दूसरों का दुख देखते हैं। वो खुद के दुख को अपने अंदर ही छिपा कर रखते हैं, लेकिन दूसरों का दुख वो देखते हैं और उनका समाधान कहते हैं कि ये काम करो, इस रास्ते में चलो। सन्यासी जी ने कहा, हे आत्मदेव, तुम बताओ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, तुम्हारा दुख का कारण मुझे बताओ। हे माता, आत्मदेव कौन है? आत्मदेव कौन है? हम सब आत्मदेव हैं। ये एक षड्यंत्र रचकर धुंधकारी दुष्ट सो रहा है, धुंधकारी सो रहा है। और उसी समय जो पंचमी स्त्री है, धुंधकारी के पास जाकर किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने प्यार को पकड़ लिया, कोई गला दबा रहे है, कोई मुख पर तकिया रख कर धुंधकारी को मारने की चेष्टा कर रही है, लेकिन उस दुष्ट का मृत्यु नहीं हुआ। फिर शास्त्र में सुखदेव मुनि ने वर्णन किया है कि जलते हुए कोयले लेकर उस धुंधकारी के, उस दुष्ट के मुख में रख कर उस दुष्ट का वध किया है। और उस मृत्यु देह को, उस शरीर को घर के पीछे मिट्टी के अंदर उस शरीर को रख दिया। जितना भी धन था सब स्त्री एक एक करके लेकर
अच्छा कर्म ये अगर मनुष्य करते हैं तो जो हरिनाम के अकाउंट है ना, उस अकाउंट में, हरिनाम के अकाउंट में वो जमा हो जाता है और मनुष्य के जाने के पश्चात भगवान जी उस अकाउंट को दिखाते हैं कि देखो तुमने क्या किया। उस व्यक्ति ने कहा ये तो ठीक है, ये तो बच गए, लेकिन आप लोग एक बात बताइए, ये जो 80 साल के बाबा जी है, मैंने इनसे इतना पूछा कि बाबा जी आप कितने वर्ष के हैं, तो आप लोग जानते हो कि बाबा जी ने क्या कहा कि इनका वर्ष मात्र 12 साल है। तब 80 साल के बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन बेटा, मेरा वर्ष है 80 साल, लेकिन मैंने दीक्षा लिया है, मात्र 12 साल हुआ है मैंने दीक्षा लिया है, इसीलिए मेरा वर्ष है 12 साल का हूँ मैं, मेरा नया जन्म हुआ है और मैं 12 साल का हूँ। ये 80 साल तो मैंने व्रत में ही छोड़ दिया, ये गवा दिया, लेकिन ये 12 साल ही मेरे पास है और सब मैंने मिट्टी में कर दिया, 80 साल का नहीं हूँ। अर्थात मनुष्य का जो जन्म होता है, एक मातृभूमि मातृगर्भ से भूमिष्ठ होना, ये एक जन्म हो गए। दूसरा जन्म है दीक्षा लेने के बाद मनुष्य को और एक जन्म मिलता है। तो हे ठाकुर भक्तगण, ये जो शरीर है ना, घड़ा है ना, उस दिन गंगा में गए थे गंगा जल लेने के लिए कलश यात्रा में, तो घड़ा को हमने कैसे, घड़ा में पानी जल को भरा था, घड़ा को नीचा करके, ये नहीं कि घड़ा को सीधा ही जल में हमने रखा था, उसको झुकाना है। तो ये जो शरीर है ना, ये शरीर घड़ा है, तो ये शरीर रूपी घड़ा को भी ठाकुर जी के सन्मुख झुकाना चाहिए, बड़ों के सन्मुख झुकाना चाहिए। जब झुकाएंगे तो 1 करोड़ नहीं आशीर्वाद मिले। राधे राधे को बोलना पड़ेगा, बोलो जय जय श्री राधे।
मेरे बलवा दुख काहे बहुत। हम दुख में ठाकुर जी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन सुख आते हैं क्या है? किसी शास्त्र में ये लिखा है कि ठाकुर जी कुछ क्षण के लिए यमुना में कूद गए तो सुनंदा आए और देख रही है कि नंद रानी सो रही है, उनके पास एक पुत्र सो रहे हैं। ठाकुर जी के पास आए हैं आप लोगों को तो क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। और क्या बोलती है? बधाई नहीं मिला अभी तक, मिलेंगे। अपना जो कार्य है वो तो पूरा कीजिए, है ना? तो आगे क्या कहते हैं? बजाइए मिलेगा। आए हैं नंद जी के घर, है ना? तो आगे सब भक्तन क्या कहते हैं? चंद्रा सखी बोलेंगे
कन्हैया तेरा बड़ा उत्पात संग गौरवार है गुरु साथ संग है गौरवार और गुरु साथ कर दे कन्हैया जिया महाराज कन्हैया से बंदी बोले मटकी मटकी भोरी सबको देना है
ठाकुर जी धारण करते हैं और दौड़ करके 100 गोपियां गोल खड़ी हो गई। ये गोल खड़े हो जाओ, गोल खड़े हो जाओ गोपियां। जय श्री राधे। लाली की सेवा करते हुए भैया बाबा सभी देवकी मैया वसुदेव जी सब बड़े धूमधाम से आज कृष्ण और रुक्मणी जी की ब्याह है ना। आइए तो किसी किसी नृत्य करना है ठाकुर जी की ब्याह। पूरे पूरे हाथ उठाए इस संस्कारी में ब्याह में जाते हैं आप लोग और डीजे पे नृत्य नहीं डांस ढोला बजा रे नंदला के रूप बने दुल्हन ढोला बजा रे नंदला के रूप बने ढोला बजा रे नंदला के रूप बने दुल्हन
तो सुदामा जी तो हाथ जोड़ कर कहने लगे, कृष्ण मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ और तुम कृष्ण नंद जी के पुत्र हो, वसुदेव जी के, तुम तो राजा के पुत्र हो और एक धनी व्यक्ति के साथ और दरिद्र व्यक्ति के साथ कभी संबंध नहीं टिक सकता है। अगर हो भी जाए तो कुछ दिनों के बाद वो संबंध टूट जाता है। ठाकुर जी कहने लगे, सुदामा मैं एक बार जिसे पकड़ लेता हूँ उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। सुदामा मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, आओ आज मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। ठाकुर भक्तगण हम सब से ठाकुर जी ये नहीं कहते हैं कि मुझे अच्छा भोजन दो, मुझे अच्छा वस्त्र, मुझे धन दो। ठाकुर जी तो एक ही चीज कहते हैं कि हे मनुष्य, हे भक्त, तुम्हारे पास जो मन है इस मन को मुझे दो। मैं और कुछ नहीं मांगता, उस मन को मुझे सौंप दो। आज सुदामा जी बड़े आनंद में, आज कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज वही गुरुकुल में हो जाते हैं और एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं इनके गले में तुलसी माला, एक दो तीन ही मैंने देखा है कि तुलसी माला है। तो ये तुलसी माला लेने से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा करते हैं? ये जो शरीर है ना ये अपवित्र है, तो
इसे पवित्र करने के लिए तुलसी माला धारण करना चाहिए। तुलसी की माला धारण करने से कृष्ण भक्ति उदय होते हैं, मन में सत्यता उदय होते हैं। और शास्त्र में लिखा है जो भी मनुष्य तुलसी की माला धारण करते हैं कभी भी उसे अकाल मृत्यु नहीं होती। ये तुलसी माला पहनने से बहुत ही आप सभी को फायदा मिलेगा। बहन को तो देखिए, जो क्रोध है, काम क्रोध लोभ, ये सब कब हो जाएगा। जब आप गलत कर्म करने जाओगे ना, गलत कुछ कार्य, तो ये जो गले में तुलसी माला है ये आपको कहेंगे कि ये गलत है, मत करो। क्योंकि आपके गले में जो कृष्ण जी के अधिक प्रिय है तुलसी, तो आप अगर गलत कार्य करने गए तो ये तुलसी की माला आपको कहेंगे कि ये गलत है, ये मत करो। तो तुलसी की माला कहती है। जो हरिचंद ठाकुर है उनको मानते हैं तो आचा की, बंगोली माता आचा की माला, करोंगे की माला कह जाते हैं उसे, वो पहनती है। अगर कोई भोलेनाथ जी को मानते हैं तो रुद्राक्ष पहनी है। कोई भगवान अलग नहीं है, सब भगवान हमारे ठाकुर जी ही है, उन्होंने अवतार लिया है। कृष्ण जी, भोलेनाथ जी भी कृष्ण है, विष्णु भी कृष्ण है, माँ काली, हरिचंद ठाकुर, अनुकूल ठाकुर, सब भगवान को श्रद्धा कीजिए। ये नहीं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ तो माँ काली को प्रणाम नहीं करूँगा, मैं कृष्ण भक्त हूँ भोलेनाथ जी के भक्त को मैं सम्मान नहीं करूँगा। नहीं, सबको एक दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से देखना चाहिए। सब भगवान एक ही है, लेकिन हम भेदभाव करते हैं, है ना। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। और एक गौर पाल खड़े हैं। सुदामा जी खड़े हो गए। ठाकुर जी प्रभु सुदामा को आलिंगन करते हैं और कहने लगे, मित्र सखा, तुम मेरे से मिले बिना तुम चले जा रहे थे। कृष्ण सुदामा
सुदामा को कहने लगे, सखा तुम मेरे से मिले बिना चले जा रहे थे। सखा तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं नहीं आऊं, मेरा मित्र, मेरा सखा। और ये सब दृश्य आज द्वारिकावासी सभी देख रहे कि आज ठाकुर जी द्वार में रोते हुए आज सुदामा को पकड़ कर रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी की आंखों में अश्रु है। मेरा मित्र, मेरा सखा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। ठाकुर जी सुदामा को लेकर चलो मित्र, तुम मेरे साथ चलो। तुमने ये कैसे सोच लिया तुम वापसी चले जा रहे थे, मेरे से मिले भी। सुदामा कहने लगे, प्रभु मैंने सोचा कि आप द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, आप मुझसे मुझ अधम से मिलने आएंगे। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी कृपा, आपकी लीला धन्य है। ठाकुर जी वो सुदामा को पकड़ लेकर आए और जितने भी पटिरानियां थे ठाकुर जी के सब ये दृश्य को देख रहे हैं कि ये मेहमान कहाँ से आए हैं। और सुदामा जी को सिंहासन पे बिठाते हैं। सुदामा कहते हैं, प्रभु नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं। ठाकुर जी सुदामा को बिठाए। ठाकुर जी बैठ गए आज भक्तों के चरणों में। मैया इस भाव को अनुभव कीजिए, ये हंसने वाले दृश्य नहीं है, ये कोई हंसने वाली कोई खिलौना नहीं है, ये दृश्य नहीं है, ये दर्शन है प्रभु। आज प्रभु जो संत महात्मा जो तप करते हैं, जिनको पाने के लिए वही भगवान है, आज एक भक्तों के चरणों के सन्मुख बैठे आज रुदन कि मेरा मित्र, मेरा सखा। रुक्मणी को कहते कि जाओ रुक्मणी, एक थाली लेकर आओ और एक लोटा जल लेकर आओ। आज मैं अपने मित्र का चरण जल करूं। रुक्मणी बैठ गई। आज ठाकुर जी सुदामा जी को चरण को ये सोचने वाली बात है कि आज भगवान होकर एक भक्त के चरण को ऊपर ठाकुर जी आज उस चरण को लेकर आज ठाकुर जी ऐसे रुदन करने के आज ठाकुर जी के अश्रु से आज सुदामा के प्यार आज उनके चरण धुलन कर रहे हैं। आज ठाकुर जी रो रहे हैं, सुदामा भी रो रहे हैं। रुक्मणी देख रही है, ये दृश्य क्या है, इतना प्रेम, ये कौन है। ठाकुर जी देखते हैं कि आज सुदामा के चरण काटे चुके हैं, उसे निकाले। कहने लगे, मित्र बड़ा कष्ट हुआ ना यहाँ तक आने में, मेरा मित्र, मेरा सखा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरी जो भाभी है सुशीला, वो तो ब्राह्मणी है, उनको तो पता है, भाभी ने तो कुछ भेजा है। तो सुदामा जी फिर से वही छिपा रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि सुदामा, एक बार तूने चोरी करके अपने जीवन में दरिद्रता लेकर आया, आज फिर से वही गलती करते जा रहा है। ठाकुर जी कहते हैं कि उठाओ अपने दोनों हाथ। तो सुदामा एक हाथ उठाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि सुदामा दोनों हाथ उठाओ, लेकिन सुदामा जी नहीं उठाते हैं। ठाकुर जी जानते हैं और ठाकुर जी सुदामा के पास जो पोटली है उसे खींच कर पोटली को लेकर पोटली ले लेते हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, उस पोटली को ठाकुर जी खोलते हैं और उसमें से एक मुट्ठी तंदूर
तंदूर माने चावल। एक मुट्ठी तंदूर लेकर ठाकुर जी अपने एक मुट्ठी तंदूर लेते हैं और एक मुट्ठी तंदूर लेकर अपने मुख में देकर ठाकुर जी मने मने कहते हैं कि मैं सुदामा को एक लोक दान कर रहा हूँ। फिर ठाकुर जी और एक मुट्ठी तंदूर लेते अपने मुख में देकर फिर ठाकुर जी मनी मनी कहते हैं कि मैं सुदामा को और एक लोक दान कर रहा हूँ। रुक्मणी फिर ठाकुर जी और एक मुट्ठी तंदूर जब अपने मुख में देने गए तब रुक्मणी आती है और ठाकुर जी के हाथ को पकड़ ली। रुक्मणी जी कहती है कि प्रभु अगर सुदामा कितने दिन तक रुके थे? 7 दिन। तब सुदामा जी कहते हैं कि मित्र सखा अब मुझे जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है तुम जाओ। अरे दादा बाबा बोला जय जय श्री राधे। आज सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु मुझे अब जाना चाहिए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ।
राधा नाम दिल में मिशन, राधा नाम दिल में मिशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मिशन, राधा नाम है दिल में मिशन। बड़ी सभा में क्या कर सकते हैं? बड़ी सभा में कैसे मतलब भिक्षा भीड़ में क्या कर सकते हैं? बड़ी सभा में कह सकते हैं आया मैं उधर ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मिशन, राधा नाम है दिल में मिशन। बड़ी सभा में बड़ी सभा में कह सकते हैं आया चलो रे मन श्री वृंदावन